السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اب جیسے کہ ایک بریکنگ نیوز آنے والی ہے اور جس کے آنے کی وجہ سے مقلدین کی جماعت میں بھوچال آیا ہوا ہے، تہلکہ مچا ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ ان کی پاپ کی دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے کہ طلاق کے اوپر شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ کی بہت زبردست کتاب منظر عام پر آنے والی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مقلدین کا مذہب شوشہ اور ان کا شیوہ لوگوں کو دھوکہ اور مغالطہ دینا ہی ہوتا ہے، تو اب انہیں اپنی پول پٹی کھلنے کا خطرہ ستانے لگا ہے۔ اور یہ کتاب جب منظر عام پر آئے گی تو جس طرح یزید بن معاویہ سینے پہ ہاتھ کا یہ 10 سال سے جواب نہیں لکھ پائے ہیں، 50 سال تک یہ کتاب کا بھی جواب نہیں لکھ پائیں گے، تو اب اپنی جہالت و گمراہی کو چھپانے کے لیے، اپنے دھوکے اور مغالطے کو چھپانے کے لیے، اپنی سوئی ہوئی بے ہوش، لاچار، مجبور، ان پڑھ، جاہل عوام کو یہ اور بے ہوشی کے مغالطے کے انجیکشن دھوکے دیں گے تاکہ وہ اور جاگنے کے بجائے بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے الاجماع فاؤنڈیشن نے، یہ اسی گھبراہٹ کا نتیجہ ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں ان کی غلطیوں کی تصدیق کرتا چلوں کہ یہ جو اصل میں مقلدین ہوتے ہیں، مقلدین کا تو کوئی معیار اور کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ اپنی صلاحیتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، علم جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنی جہالت خود بیان کر دیتے کہ ہم مقلد ہیں۔ اب مقلد کچھ بھی کر لے وہ باصلاحیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اجماعی جاہل ہے۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام رکھا ہے الاجماع فاؤنڈیشن۔ اجماع یہ اصطلاح ہے، اور یہ نام اصطلاحی نام کون رکھتا ہے؟ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ایسے نام نہیں رکھے جانے چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام رکھ لیا ہے۔ تو ان کا علمی معیار تو ایک جھلک میں آپ نے ان کے نام سے دیکھ لیا ہے، اور میں نے وجہ بتا دی آپ کو کہ یہ سارے دھوکے مغالطوں کی وجہ کیا ہے۔ اب آئیے آگے، جو 3 طلاق کے اوپر یہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتہا، تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا طلقتہا ثلاثا، اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں بولے ہو؟ قال نعم، ہاں ایک مجلس۔ قال فإنما يتلك واحدة، یہ تو ایک ہی طلاق ہے، فرجع ان شئت، اگر چاہ تو رجوع کر لے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی، ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا ایک۔ دیکھا آپ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق 3 طلاق آپ نے دیکھا کہ رکانہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، میں یعنی اپنی ہی سوئی ہوئی عوام کو اور مغالطے کے انجیکشن دے کر یہ سلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ 3 طلاق پر شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ کی کتاب آ کے جو طوفان مچانے والی ہے، جو دنیا میں زلزلہ لانے والی ہے، اس زلزلے کی دھمک، اس کی چمک ان مقلدین کو سنائی اور دکھائی نہ دے۔ یہ جیسے چرسی گردلے لوگ ہوتے ہیں، نشہ مار کے کونے کاپچے میں پڑے رہ جاتے ہیں، یہ بھی پڑے رہ جائیں۔ تو اس طرح یہ دھوکے اور مغالطے اٹھا کے لا رہے ہیں اور اپنی عوام کو سلا رہے ہیں، اور ان کی جاہل عوام اس کو شیئر بھی کر رہی ہے اور لائک بھی کر رہی ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ عَصِیمًا أَوْ کَفُورًا، کہ پس تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم رہ، اس کی پیروی کر، اور کسی ناشکرے اور گناہ گار کی بات مت ماننا۔ قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے، مقلدین کیا کر رہے ہیں؟ ایسے دھوکے باز، مغالطے باز، جن کو اپنے آرگنائزیشن کا نام رکھنا نہیں آتا، ان کی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں اور ان سے دین سیکھ رہے ہیں۔ صریح قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ اور کیا بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حق بولنے والا بنایا تھا۔ تو حضرت عمر نے کب کہا ہے کہ مقلدین سے تم اپنا مذہب لو؟ حضرت عمر نے تو کہا ہے کہ عراق سے قیاس کرنے والے آئیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کیسے گمراہ کر رہے ہیں، آئیے ان کی چالاکی مکاری ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ہی ثابت کرنے کے لیے اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले के खिलाफ फिरका अहले हदीस जो दलील मुस्नद अहमद से पेश कर रहा है, आइए देखते हैं कि वो हदीस सही है भी कि नहीं। चलिए पहले इस हदीस की सनद पर एक नजर डालते हैं। ये हदीस पहुंची सईद बिन इब्राहिम को अपने वालिद से और उनको मोहम्मद बिन इसहाक से और मोहम्मद बिन इसहाक को दाऊद बिन हुसैन से और दाऊद बिन हुसैन को इक्रिमा से और इक्रिमा वो रिवायत बयान करते हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से। फिरका अहले हदीस की तरफ से पेश की गई हदीस के 3 तलाक एक होती है, ये मुनकर यानी रिजेक्टेड, ज़ईफ और कमजोर हदीस है। जी हाँ, और उसका मेन रीजन ये है कि दाऊद बिन हुसैन ने ये हदीस इक्रिमा से बयान की है, और जब दाऊद बिन हुसैन कोई हदीस इक्रिमा से बयान करे तो वो हदीस रिलायबल यानी सही नहीं मानी जाएगी। दोस्तों आप समझे, दाऊद बिन हुसैन जब भी कोई हदीस इक्रिमा से लेते हैं तो उस हदीस में प्रॉब्लम होती है। वो देखा आपने, इन्होंने सराहतन वजाहतन ये बात कही है कि इस हदीस में दाऊद से इक्रिमा जब रिवायत करते हैं तो यही असल है, यही बुनियादी चीज़ है ये रिवायत के ज़ईफ़ होने पर, और इसी को वजह बता रहे हैं, इसी को इल्लत बता रहे हैं। अब इस पे क्या धोखा ये दे रहे हैं हम आगे वजाहत करेंगे, लेकिन आपको इसकी सनद में हम फिर से लेके जाते हैं कि दाऊद और इक्रिमा के पहले मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हैं इस सनद में। होना तो ये चाहिए था कि इन्होंने कहा कि असल गड़बड़ दाऊद से इक्रिमा के दरमियान है, इक्रिमा दाऊद से रिवायत कर रहे हैं, इसमें गड़बड़ है। लेकिन होना तो हनफियों के उसूल से चाहिए था कि रिवायत ज़ईफ़ नहीं बल्कि झूठी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें मोहम्मद बिन इसहाक है जिसे हनफी लोग नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कज़्ज़ाब तक कहते हैं और इमाम मालिक का हवाला तक देते हैं। तो अगर इस रिवायत में सनद में गड़बड़ है तो ज़ईफ़ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है या किज़्ब की ज़्यादा बड़ी गड़बड़ होती है। एक रावी अगर उसमें कज़्ज़ाब आ जाए तो आदमी पहले उसको हाईलाइट करेगा या ज़ईफ़ को हाईलाइट करेगा। इन्होंने जैसे कहा है कि असल गड़बड़ दाऊद से इक्रिमा की है, यानी ये मोहम्मद बिन इसहाक को सही मान रहे हैं, सिका मान रहे हैं, जबकि ये ख़ुद कहते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन इसहाक सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने वाली रिवायत बयान करते हैं तो ये वहाँ पर उन पर कज़्ज़ाब का हुक्म लगाते हैं, रिवायत नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि मोहम्मद बिन इसहाक को यहाँ ले रहे हैं। ये गड़बड़ किस में असल बता रहे हैं? दाऊद से इक्रिमा में। मोहम्मद बिन इसहाक से दाऊद में गड़बड़ नहीं बता रहे हैं, या मोहम्मद बिन इसहाक से उनके ऊपर गड़बड़ नहीं बता रहे हैं। आप समझे? तो होना तो ये चाहिए था, हनफी जो तुम आज तक सूरह फातिहा पे चिल्लाते हो कि सूरह फातिहा की रिवायत ज़ईफ़ है और इमाम मालिक ने मोहम्मद बिन इसहाक को कज़्ज़ाब कहा है वग़ैरह वग़ैरह, तो इस हदीस पर झूठ या किज़्ब का हुक्म लगाना चाहिए था, झूठी मरदूद हदीस का हुक्म लगाना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि ये अल इज्मा फाउंडेशन ने इस इल्लत को छोड़कर दाऊद से इक्रिमा वाली इल्लत को पकड़ा? ऐसा लगता है कि अहले हदीस की दावत, अहले हदीस की मेहनत रंग ला रही है और अब ये देवबंदी हनाफी मुक़ल्लिद तौबा करने लगे हैं, रुजू करने लगे हैं और मोहम्मद बिन इसहाक को सिका मानने लगे हैं। तो जैसे ही मोहम्मद बिन इसहाक को अब इन्होंने सिका माना है तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने वाली रिवायत सही हो गई, तो इन्होंने हनफी मज़हब को धड़ाम से दर से गिरा दिया। अब ये मसला इनका यही है कि जब इनके पास इल्म नहीं होता और ये वला तुती मिनहुम आसिमन और कफूरा वाली सिफ़त लेकर आदमी आएगा और दीन समझाएगा तो पजामा पहनेगा तो कुर्ता उतर जाएगा और कुर्ता पहनेगा तो पजामा उतर जाएगा। अब ये सनद में इल्लत कुछ और बता रहे थे और असल इल्लत को ये इनके उसूल के, इनके मज़हब के हिसाब से छोड़ दे रहे थे। ये मजबूरी, ये लाचारी क्यों? ये धोखे आपने क्यों नहीं दिए? मोहम्मद बिन इसहाक का नाम लेकर जो आज तक आप धोखा देते आए थे, तो वहाँ सूरह फातिहा की बात आती तो मोहम्मद बिन इसहाक बहुत याद आते, आज याद क्यों नहीं आए? आज असल इल्लत कौन सी हो गई? ये यानी मोहम्मद बिन इसहाक को इन्होंने सिका मानकर आज हनफी मज़हब को ढा दिया है, तौबा कर लिया है, रुजू कर लिया है। अहले हदीस की मेहनत दावत रंग ला रही है। अब आइए इस रिवायत की सनद में जो दाऊद से इक्रिमा के दरमियान उन्होंने धोखे मुखालते दी हैं उस पर थोड़ी रोशनी डाल के बात को मुख्तसर अंदाज में ख़त्म करेंगे ताकि आवाम के लिए समझना आसान हो जाए। वो मुनकर यानी ज़ईफ़, रिजेक्टेड होती है। आप इस कंडीशन को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हम इस हदीस को अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि असलाफ ने, जी हाँ, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसकी सनद को रिजेक्ट किया है। लीजिए सुनिए।
सबसे पहले अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के टीचर भी हैं, सदियों पहले के सलफ और मुहद्दिस भी हैं। वो इस हदीस की सनद में आने वाले दाऊद बिन हुसैन के बारे में कहते हैं कि वो इक्रमा से जो भी रिवायत नकल करे वो मुनकर होती है। क्या होती है? मुनकर, यानी रिजेक्टेड। इसके बाद इमाम बुखारी यहाँ पर जो धोखा दिया है इन्होंने, असल में अरबी इबारत यहाँ पेश नहीं की, क्योंकि अरबी इबारत पेश करते हवाला आता, लोग उस हवाले तक पहुँच जाते और इनकी पोल खुल जाती, इसलिए इन्होंने इंग्लिश का सहारा लिया है। देखिए, इनका एक चालाकी मक्कारी होती है कि जहाँ तर्जुमे से धोखा दिया जा सकता है वो तर्जुमा लेते हैं, जहाँ अरबी से धोखा दिया जा सकता है वहाँ अरबी लेते हैं। और अब इन्होंने एक मज़ीद इजाफा कर दिया है कि अब इंग्लिश से धोखा दिया जा रहा है तो इंग्लिश लिया जाए। भाई, इमाम इब्नुल मदनी का हवाला अरबी में क्यों नहीं दिए? ये जो जुरूहात होती है, असल में ये जानते हैं कि अहले हदीस तो फ़ौरन पकड़ लेंगे, लेकिन इनकी जाहिल अवाम जो सोई हुई है, नशे में टुन है, एकदम सुन है, उनको क्या मालूम कि क्या उसूल हदीस होते हैं। क्या वो तो फ़ज़ाइल अमल के झूठे किस्से पढ़ पढ़ के अपना दीन गारत कर रहे थे, दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे थे। उन्हें क्या जाए, उन्हें तो मानसूर चली जाएगी। अब इनसे पूछे, मैं पूछना चाहता हूँ, ए अंधे मुकल्लिदो, अपने इस अलजिमा फाउंडेशन में फ़ोन करके पूछो कि इमाम इब्नुल मदनी ने अगर ये बात कही है दाऊद से इक्रमा की, तो उसकी इल्लत क्या बताई है, क्या वजह बताई है? वजह गिनाना चाहिए ना। और जब बिना वजह के कोई जरह करेगा तो क्या जरह काबिल कबूल होगी? नहीं। तुम्हारे इमाम साहब इमाम अबू हनीफा पर तो जरह नहीं, जरह मुफस्सर है। इमाम जौज़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तमाम अहले इल्म का इत्तेफाक है इमाम अबू हनीफा पर तान करने में, क्योंकि उन्होंने कुरान और सही हदीस की सरी मुखालिफत की, इजमा नकल कर दिया। इतनी दलाइल, इतने वजह, इतने वजूहात हैं कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न शैबा ने चैप्टर बांध दिया रद्द अबू हनीफा करके, और 127 से 28 मसाइल गिना दिए कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़। इतनी सारी वजूहात के बावजूद भी तुम नहीं मानते, और यहाँ इमाम इब्नुल मदनी ने कोई वजह ही नकल नहीं की और तुमने उसको मान लिया। तो भाई, तुम अंधी तकलीद करते किसकी हो? अब एक उसूल और आपको याद आएगा कि इमाम आज़म, इमाम आज़म, इमाम आज़म, हदीस के इमाम आज़म या उसूल के इमाम आज़म बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। लेकिन पूरी ऑडियो में इन्होंने कहीं भी अपने इमाम का एक हवाला पेश किया है कि इस हदीस के बारे में हमारे इमाम ने ये कहा, ये हदीस हमारे इमाम ने नकल की। तो मालूम हुआ कि इनके इमाम साहब राय कयास के इमाम थे, ना कि हदीस और उसूल हदीस के। कहीं पर भी बेचारे लाचार मजबूर रहते हैं, अपने इमाम को पेश नहीं कर पाते, फिर भी इनकी सोई हुई सुन टुन अवाम कैसे इमाम आज़म मान लेती है। तो पहला धोखा कि इन्होंने इमाम इब्नुल मदनी की जरह पेश की, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई कि इमाम इब्नुल मदनी वजह क्या बताई है। जब तक वजह नहीं आएगी बात कबूल नहीं की जाती, इसे कहते हैं अंधी तकलीद। तो आज इन्होंने इमाम अबू हनीफा की तकलीद से लोगों को फेर कर इमाम इब्नुल मदनी की अंधी तकलीद करवा दी। अब आइए दूसरा धोखा देखते हैं। रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि इक्रिमा से दाऊद बिन हुसैन की हदीस मुनकर है, यानी ज़ईफ है। इनके अलावा और भी मुहद्दिसीन जैसे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यही कहते हैं कि दाऊद बिन हुसैन सिखा है सिवाय इक्रिमा से रिवायत करने में, यानी उनकी रिवायत तभी मानी जाएगी, तभी कंसीडर की जाएगी जब वो हदीस इक्रिमा से ना आई हो। मगर अफसोस, फिरका अहले हदीस की पेश की गई ये हदीस, यहाँ पर भी आपने देखा कि कहीं पर भी कोई अरबी इबारत इसीलिए पेश नहीं की गई है कि इनकी चालाकी मक्कारी धोखे 2 मिनट भी नहीं चलेंगे और ये ताश के पत्तों की तरह ढेर साबित होगा, जो चांद तक तो नहीं शाम तक भी नहीं चलेगा और इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब इब्न हाफिज़ इब्न हजर का नाम लेकर भी धोखा दिए हैं। हाफिज़ इब्न हजर ने कहीं पर भी जरा नहीं की है, अगर जरा की है तो अल्फाज दिखाएं। बल्कि हाफिज़ इब्न हजर ने तो सुकूत इख्तियार किया है, और हाफिज़ इब्न हजर सुकूत इख्तियार करते हैं वहाँ पर रावी की तहसीन होती है, ना कि वो ज़ईफ़ होता है या झूठा होता है। तो ये चंद धोखे थे जो मुख्तसर अंदाज मैंने आपके सामने बयान किया हूँ, और फिर वजह बता देता हूँ कि असल में ये धोखे और मुगालतों का सिलसिला इन्होंने शुरू क्यों किया है। क्योंकि इन्हें मालूम है शेख किफ़ायतुल हसन अली हफ़्ज़ुल्लाह की 3 तलाक पर किताब आ रही है। हनफियत एक बार हिलने वाली है, झंझोड़ दी जाने वाली है। जैसे यजीद बिन माविया वाली किताब आकर पूरी शियायत, रावजियत, खारजियत, साबायत को झिझोड़ कर रख दिया गया, और अहले सुन्नत अहले हदीस में घुसे हुए रावजी खारजियों को खोद खोद कर निकाल लिया गया। और फिर उसके बाद सीने पे हाथ बांधने और तरावी वाली किताब आने के बाद हनफियत की चूल्हे हिला दी गई। अब इनकी बुनियाद हिलने का वक्त आ गया है। तो ये वो घबराहट है जो एक तूफ़ान, एक ज़लज़ला आने से पहले चरिंदों परिंदों इंसानों को घबराहट, डर, खौफ सताता है। तो ये डर, खौफ है जिसको
دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے پھر اپنے دھوکے باز مغالطے باز مذہب پر اتر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے ولا تطیع منہم آثما او کفورا، ایسے گناہ گار اور ناشکرے سے دین لینے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔